اب جو آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے. بڑی خاص آیت مبارکہ ہے. ایک ہے غریبی اور ایک ہے امیری. اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ غریبی کیا چیز ہے اور امیری کیا چیز ہے، اور ان دونوں میں سے رب کو کیا پسند ہے، غریبی یا امیری. کسی کا مالدار ہونا یا کسی کا مالدار نہ ہونا، ان دونوں میں سے رب کو کون سا بندہ پسند ہے، مالدار پسند ہے یا غریب پسند ہے، اللہ کو کون سا پسند ہے. اس آیت کے اندر اسی طرح کے اور کئی ایک نکات آپ پر واضح ہوں گے. واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ تر غریب لوگ بیٹھتے تھے، مالدار بہت تھوڑے ہوتے تھے. عیینہ بن حسن فزاری یہ ایک مکہ کا رئیس شخص ہوا، کافر تھا. حسن ہے سواد کے ساتھ، ہے سواد نون حسن. ایک روایت کے مطابق یہ شخص اور ایک روایت کے مطابق امیہ بن خلف یہ بھی مالدار آدمی تھا. تو عیینہ بن حسن فزاری یا امیہ بن خلف ان دونوں میں سے کوئی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو غریب لوگ، پسماندہ لوگ، مظلوم لوگ، اس معاشرے کے اس طبقے کے پسے ہوئے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سٹیٹس ہمارے سٹیٹس سے بہت نیچے ہوتا ہے. کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، حالت ان کی نازک ہوتی ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ ایسا کریں، ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں. جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ آپ کے پاس سے اٹھ جایا کریں. اگر آپ ان کو اپنے پاس سے الگ کر دیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے. دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم اسلام قبول کریں، ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر ایمان لائیں، آپ کی کتاب کی ہم پیروی کریں، آپ کو نبی مانیں، آپ کو رسول مانیں. لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہیں آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں، انہیں دور کر دیں. جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ آپ کے پاس سے اٹھ جائیں. اب غریب صحابہ کرام تھے لیکن ان کے دل اللہ کی محبت سے آباد تھے. اب آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں سے کن سے پیار ہے؟ غریب سے؟ صرف غریب سے نہیں. ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے، بھئی اگڑے غریب بندے ہوندے نا اے اللہ دے بہتے نیڑے ہوندے. یہ سوچ بھی غلط ہے. کئی لوگ جان بوجھ کے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں غریب سمجھیں، اور اس بنیاد پر لوگ ہمیں کہیں بھئی اے اللہ دے بڑا نیڑے ہے. ہاں جی، یہ ہمارے نا کچھ 2 نمبر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، بطور خاص پیر 2 نمبر دھوکے باز لوگ. مثلا وہ اپنے بال بڑھا لیں گے، داڑھی اپنی بڑھا لیں گے، مونچھیں اپنی لمبی لمبی رکھ لیں گے، کپڑے جان بوجھ کے پھٹے پرانے پہن لیں گے جن کے اندر پیبند لگے ہوں، ٹاکیاں لگی ہوں، ٹھیک ہے، اپنی حالت غریبوں والی بنا لیں گے، اور وہ اپنے طور پر ظاہر یہ کرنے کی کوشش کریں گے اسی اللہ دے بڑے نیڑے ہاں. بھئی صرف غریبی بھی اللہ کی محبت کا نام نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے یہ غلط سوچ ہے کہ غربت کا نام ہے اللہ کے قریب ہونا، یا غربت نام ہے اللہ سے محبت کا ہونا. یہ غلط سوچ ہے. یہی تو میں نے آپ کو آج بات سمجھانی ہے. اللہ کو محبت غریب اور مالدار سے نہیں ہے کہ مالدار ہوگا تو اللہ اسے پیار کرے گا، یا غریب ہوگا تو اللہ اسے پیار کرے گا. اللہ کی محبت کا معیار نہ امیری ہے نہ غریبی ہے. اللہ سے محبت کا دار و مدار کیا ہے؟ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک نے وہ نشانیاں خود بتائی ہیں کہ میں کن سے پیار کرتا ہوں، میں کن سے راضی ہوتا ہوں، میں کن سے خوش ہوتا ہوں. اب یہ معاملہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتنا نازک ترین معاملہ ہے
बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जमात को अपने से दूर करना है और एक जमात को अपने करीब करना है। यानी वो मुतालबा ये कर रहे थे ना कि आप गरीबों की जमात को अपने से अलग कर दें, तो हम अमीरों की जमात आपके पास बैठने के लिए तैयार हैं, हम बैठेंगे आपके पास, हम इस्लाम ले आएंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, आपके डिसीजन लेने से पहले कुरान पाक की आयत आ गई। ये जो आयत मैं आपके पास पढ़ने लगा, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहू। वस्बिर, आप रोक के रखिए। वस्बिर के दो माने हैं ना जी, एक माना है वस्बिर का बर्दाश्त कीजिए और एक माना है रोक के रखिए। तो यहां दूसरा माना मुराद होगा कि आप अपने आप को रोक के रखिए। नफ्स का, आप अपने आप को, अपनी जान को, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब को याद करते हैं दो वक्त, बिलगदाती वल अशिय्यि, सुबह भी और शाम भी। अल्लाह पाक ने दो लफ्ज़ बतौर ख़ास इसलिए जिक्र कर दिए। सुबह शाम का मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ दो वक्त याद करते हैं, सुबह शाम का मतलब ये है वो हर वक्त अपने रब को याद रखते हैं। सुबह शाम का मतलब क्या होता है? हर वक्त, 24 घंटे। वो कभी एक लम्हे के लिए भी, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वो कभी अपने रब को भूलते ही नहीं है, सदा हमेशा अपने रब को याद रखते हैं, अपने रब को पुकारते हैं। पहली उनकी अलामत यह है, वो अपने रब को पुकारते हैं। दूसरी अलामत, युरीदून वजहहू, वो अपने रब को जो पुकारते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए, फकत उसकी रजा के वो तलबगार हैं। अच्छा, अगर मैं उसका जो लफ्ज है उनका माना करूं, युरीदूना, वो चाहते हैं, वो इरादा रखते हैं, किसका? वजहहू, सिर्फ अपने रब के मुखड़े का, अपने रब के जलवे का। वो चाहते हैं सिर्फ अपने रब का दीदार। जो रब को पुकारते हैं तो क्यों पुकारते हैं? क्या लेने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए? उसका दीदार, उसकी झलक, उसका जलवा। युरीदूना, वो चाहते हैं, वजहहू, उसका दीदार, उसका चेहरा, उसकी जियारत करना चाहते हैं। अब ये दो अलामतें हो गई, एक रब को पुकारना, रब को याद करना, रब का जिक्र करना, और दूसरा रिज़ाए इलाही, यानी जिक्र इलाही और रिज़ाए इलाही। कि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह की रजा के तलबगार हैं, वो रब को राजी करना चाहते हैं। अपने रब को राजी करने के सिवा उनकी कोई मंजिल और कोई मकसूद नहीं है। अब आयत की थोड़ी समझ आपको आ चुकी होगी कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को इन लोगों के साथ रोक के रखिए, आप इनके साथ रहिए, आप उनको अपने से दूर न कीजिए। फुकरा की जमात को, गुरबा की जमात को, मसाकीन की जमात को। महबूब, मुझे इन मिस्कीनों से बड़ा प्यार है, इन गरीबों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, इसलिए नहीं कि वो मिस्कीन हैं, वो गरीब हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनके दिलों में एक तो दुनिया की जर्रा के बराबर भी मोहब्बत नहीं है, दुनिया का लालच नहीं है, माल का लालच नहीं है। वो माल की तमा किए बगैर, दुनिया का लालच किए बगैर, दुनिया की हिर्स और दुनिया की तमा रखे बगैर अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं, फकत अपने रब को राजी करने के लिए। तो आपको समझ आ चुकी होगी
کہ गरीबी, सिर्फ गरीबी, निरी गरीबी रब को वो भी पसंद नहीं है। कौन सी गरीबी पसंद है बोलिए जरा? गरीबी हो लेकिन अल्लाह की याद हो। अल्लाह की, अगर अल्लाह की याद ना हो तो गरीबी भी रब को पसंद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अब बड़ा साफ हो गया है, अगर आपको समझ आ चुका है तो। यानी मालदार होना भी अल्लाह के यहां कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। माल के अंदर फी नफ्से ही बजाते खुद कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं है। भाई जो मालदार लोग होते हैं वही हज करने जाते हैं, जो मालदार होते हैं वही उम्रा करने जाते हैं, जो मालदार होते हैं वही ज़कात देते हैं, जो मालदार होते हैं वही सदका व खैरात करते हैं। तो हम कैसे कह दें कि मालदार लोग अल्लाह ताला को बड़े सख्त नापसंद हैं? मालदार ही आए थे ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। उयैना बिन हसन जो आया था वो मालदार था मालदार, लेकिन उसकी खातिर इनको उठाना, इन गरीबों को उठाना रब ने पसंद नहीं किया। रब ने क्या पसंद किया कि महबूब इन गरीबों के साथ रहिए। आप मालदार हैं, वो रब को मालदारों से भी प्यार है, लेकिन वो ऐसे मालदार हैं जिनके अंदर माल का गुरूर है, माल का तकब्बुर है, और उस तकब्बुर की बुनियाद पर वो इन गरीबों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। इस कदर उनके अंदर तकब्बुर आ चुका है, बड़ाई आ चुकी है, उजब आ चुका है, खुद पसंदी आ चुकी है। वो अपने आप को इतना पसंद करना शुरू हो गए हैं कि वो अपने साथ इन गरीबों को बिठाना भी पसंद नहीं करते। महबूब उनकी खातिर आप इनको छोड़ेंगे? महबूब बिलाल हबशी की क्या कदर कीमत है मेरे दरबार में? महबूब खबाब का क्या मकाम है मेरी बारगाह में? अब्दुल्ला बिन मक्तूम का क्या कदर मंजिलत है मेरी बारगाह में? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनका क्या मकाम व मर्तबा है मेरी बारगाह में? महबूब इस उयैना के लिए जो अभी है काफिर, अभी मुसलमान भी नहीं हुआ, इसकी खातिर आप सलमान फारसी को अपने से उठाएंगे, अपने पास से दूर करेंगे। ऐ मेरा हबीब, ये तो वो लोग हैं जो आपको देख देख कर जीते हैं। आपको देखकर इन्हें रब के जलवे नजर आते हैं। महबूब आपका दीदार करके इन्हें मौला का पता चलता है, इन्हें अल्लाह की मारिफत नसीब होती है। महबूब ये तो जीते ही आपको देख के हैं। अगर आप इनको एक लम्हे के लिए भी अपने से अलग कर देंगे, महबूब ये तो जीते जी मर जाएंगे। इनका दिल टूट जाएगा, इनका दिल पसीज जाएगा। महबूब नहीं, इन्हें अपने से दूर नहीं करना। वो मुसलमान हो या ना हो, जाएं भाड़ में। अभी तो वो हैं ही काफिर ना, अभी तो वो बोलिए हैं ही काफिर हो हैं। और उनके अंदर माल का गुरूर, दौलत का नशा, दुनिया की मोहब्बत, माल की हिर्स, और उन्हें अल्लाह की मोहब्बत का एहसास ही नहीं है कि अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह तो गरीबों से प्यार करता है, टूटे हुए दिलों से प्यार करता है, इन मजलूमों से रब प्यार करता है, मुआशरे के पिसे हुए तबके से रब को प्यार है। क्योंकि ये रब को याद करते हैं। तो जो रब को याद करते हैं, महबूब आप अपने आप को उनसे अलग मत कीजिए, उनको नजरअंदाज मत कीजिए। और आगे जो लफ्ज हैं बड़े काबिल गौर हैं। वला तादू आइनाका अन्हुम। अब इसका तर्जुमा बड़ा गौर से समझिएगा। बाज़ लोग इसका तर्जुमा यह कर देते हैं कि महबूब आप अपनी निगाहें ना हटाएं इनसे, इन गरीबों से, इन गरीब सहाबा इकराम की जमात से आप अपनी निगाहें ना हटाएं। इसका तर्जुमा लोग ये कर देते हैं, गलत तर्जुमा है। तादू का जो सीगा है वो मुखातब का नहीं है, वो मुअन्नस का है।
اور तादू के अंदर जो ज़मीर लौट रही है वो आंखों की तरफ लौट रही है। अब दोनों जुमलों के अंदर जो फ़र्क है मैं उसको वाज़े करने की कोशिश करूँगा। एक जुमला ये है कि महबूब आप अपनी निगाहें ना हटाएं, एक है महबूब आपकी निगाहें ना हटें, यानी मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेध्यानी के आलम में, कभी ना चाहते हुए भी, कभी अनइंटेंशनली भी आपकी नजरें इनके चेहरों से अलग ना हो जाएं, आपकी नजरें कहीं हट ना जाएं इनसे। महबूब ये तो मेरे महबूब बंदे हैं, ये तो मेरे मतलूब बंदे हैं, ये तो मेरे बरगुजीदा बंदे हैं, ये तो मेरे मुत्तकी बंदे हैं, इन्हीं से तो मेरी दोस्ती है। महबूब इन्हीं से तो मैं प्यार करता हूं। तो महबूब आपकी नजरें इनके ऊपर हमेशा रहनी चाहिए। आप अपनी नजरें करम ना हटाएं, आपकी निगाहें ना हटें। तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, क्या आप चाहते हैं दुनियावी जिंदगी की जीनत? अब इस जुमले के अंदर जो मफहूम मौजूद है जरा उसको भी समझ लें। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात मान लेते तो ये जो उमरा थे, अमीर लोग थे, ये मुसलमान हो जाते जी, क्योंकि उनका मुतालबा तो यही था। और ये मुतालबा मान लेने से गिव एंड टेक की पॉलिसी फॉलो हो जाती, और ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी होती है। कुछ लो और कुछ दो। अगर कुछ लो और कुछ दो पर समझौता कर लिया जाए तो फिर हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, लचक दिखानी पड़ती है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम उनका ये मुतालबा मान लेते तो आने वाले वक्तों में वो और मुतालबात भी मनवाने की कोशिश करते, जबकि इस्लाम की पॉलिसी ये है, इस्लाम गिव एंड टेक की पॉलिसी नहीं चाहता। इस्लाम कहता है कि तुम्हें जो भी मिलेगा सिर्फ इस्लाम से मिलेगा, बस इस्लाम के सिवा और कोई सिस्टम नहीं चलेगा। इस्लाम एक जामे निज़ाम हयात है, हर पॉलिसी इस्लाम की अपनानी पड़ेगी, हर कुलिया, हर कायदा, हर कानून। हम इस्लाम से ये नहीं कह सकते कि चलो कुछ हम इस्लाम मान लेते हैं, कुछ अपनी मान लेते हैं, ये नहीं हो सकता। इस्लाम के अंदर कुल्लियतन कंप्लीटली सिर्फ अल्लाह का ऑर्डर चलता है, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आंखें बंद करके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर मिन्नोआन अमल करना पड़ता। तो गिव एंड टेक इस्लाम में नहीं है, लो दो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कानून, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम ही चलता है। एक ये बात थी। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम इनकी बात मान लेते, दूसरा नुकसान पता है क्या होता? ऊंच नीच कायम हो जाती। उसी दिन से छोटे बड़े का फर्क कायम हो जाता। भाई नहीं समझ आ रही बात की? खुदा की इज्जत की कसम, ये आयत जब मैंने पढ़ी, इसको समझा, अंदर से आंसू निकलना शुरू हो गए कि ऐ रब्बे करीम, तूने कितनी गहरी बात अपने महबूब से फरमा दी है, और क़यामत तक के लिए इसको रख कुरान के अंदर दिया है कि या लोगों मेरा दीन देख लो, मेरा दीन एक जर्रे के बराबर भी ऊंच नीच को पसंद नहीं करता। तुम्हारे गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, आबादियों में, बस्तियों में, तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे बाजारों में, तुम्हारी अदालतों में, तुम्हारे पार्लियामेंट में, कहीं भी अगर ऊंच नीच आ गई तो समझ लेना कि यहां से इस्लाम खत्म हो गया है। जहां वहां इस्लाम खत्म हो जाता है। इस्लाम की बुनियाद है ये इक्वालिटी, मुसावात, बराबरी। छोटे बड़े का इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। उयैना बिन हसन और उमैया बिन खल्फ और मक्का के ताजरों, रईसों, ठेकेदारों, सेठों, मालदारों, तुम्हें अगर कबूल है तो बिलाल हबशी के साथ बैठना पड़ेगा। अल्लाह
ये नहीं हो सकता कि तुम आओ तो बिलाल को उठा दिया जाए, ये नहीं हो सकता कि तुम आओ तो तुम्हारे प्रोटोकॉल के लिए इन गरीबों को, इन फकीर सहाबा इकराम को उठा दिया जाए। पसंद है तो बैठो, नहीं पसंद तो ना बैठो। हम बिलाल को अपने महबूब की बारगाह से हटा नहीं सकते। बिलाल हुजूर की बारगाह में बैठेगा, सलमान फारसी हुजूर की बारगाह में बैठेगा, खबाब हुजूर की बारगाह में बैठेगा। ये लोग हुजूर से दूर नहीं हो सकते, बल्कि रब ने अपने महबूब को फरमाया, लफ्ज देखें, वस्बिर नफ्सका, महबूब आप अपने आप को इनके करीब रखिए, ये भी नहीं कहा, करीब रखिए भी नहीं कहा। महबूब आप अपने आप को इनके साथ रोक के रखिए। अब ये रोक के रखने के अंदर कितनी गहराई है, मैं उसको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर रहा। महबूब इनकी माइयत, इनकी संगत, इनकी रफाकत, इनकी सोहबत आप नहीं छोड़ सकते। ये आपके साथ रहेंगे, आप इनके साथ रहेंगे। महबूब एक लम्हे के लिए भी दूरी ना हो। भाई कुछ देर के लिए ही उठाना था ना, 24 घंटों के लिए थोड़े ही उठाना था। बस इतना ही था कि जब ये मालदार आएंगे गरीबों को उठा दिया जाए, जब मालदार चले जाएं गरीबों को पास बुला लिया जाए। ये कितनी दूरी थी, यानी आप कह सकते हैं आधा घंटा, 1 घंटा। अमीरों ने भी बैठना था, कितना बैठना था, अमीरों के पास तो बैठने के लिए टाइम भी नहीं होता, तो कुछ देर के लिए उन्होंने बैठना था। कुछ गहराई समझ रहे हैं आप लोग? अल्लाह ने इतने टाइम के लिए भी इन गरीबों को अपने महबूब से अलग करना गवारा नहीं किया है। इतने टाइम के लिए भी अगर ऐसा होता तो फिर टाइम रख दिए जाते जी, और फिर आज लोग बातें करते, लो जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का एक अजीब मामला हुआ करता था, गरीबों के लिए टाइम अलग होता था, अमीरों के लिए टाइम अलग होता था। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी बात कबूल कर लेते, इनकी बात, इन अमीरों की बात, और इन गरीबों को कुछ देर के लिए अपने से दूर कर देते, इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान होता, और वो ये होता इनका दिल दुखता, दिल टूट जाता, बिलाल हबशी का दिल टूट जाता कि मुझे सरकार ने उस अमीर के लिए उठाया है, उस अमीर के लिए मुझे उठाया है। बिलाल हबशी कोने में लग के रोते, मुझे उठा दिया गया है, मालदार आया है तो मुझे उठा दिया गया है। ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसे पैगंबर हैं? और एक बहुत बड़ा एतराज इस्लाम के ऊपर लगता, वो इसके अंदर जिक्र किया जा रहा है, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ए महबूब, अगर आप ऐसा करें कि इनके मुसलमान बनाने के लिए आप अगर इन गरीबों को अपने पास से उठा देंगे तो कल को लोग ताना देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ठाठ बाट को पसंद करते थे, दुनिया की चमक दमक को पसंद करते थे, दुनिया की रंगीनियों रानाइयों को पसंद करते थे, माल की मोहब्बत इनके दिल में थी। और अगर किसी आलिम दीन के बारे में पता चल जाए कि इसके अंदर माल की मोहब्बत है तो आप अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं? बुरा ही समझते हैं ना। क्यों बुरा समझते हैं? कि ये लामा साहब, ये मौलवी साहब, ये इमाम साहब प्यार दुनिया से करते हैं, मोहब्बत माल से करते हैं। तो जिसके अंदर माल की मोहब्बत हो उसको एज अ लीडर पसंद नहीं किया जाता। तो नबी आखिरुज़्ज़मा जो कयामत तक के इंसानों के लिए नबी और रसूल बनकर आए, रब कैसे ये इल्जाम गवारा करता कि कोई मेरे महबूब को ये ताना दे कि हुजूर के दिल में इन अमीरों के लिए प्यार है, पैसे का प्यार है, माल का प्यार है। महबूब, ये अमीर लोग बैठे या ना बैठे, इस्लाम लाएं या ना लाएं, आप अपने बिलाल को अपने से दूर न कीजिए, ताकि लोग जान जाएं कि इस नबी के दिल में माल का प्यार नहीं है, ईमान का प्यार है, ईमान की कदर व कीमत है। बोलिए, असल कदर व कीमत किसकी है? ईमान की है, मोहब्बत इलाही की है, जिक्र इलाही की है, रिज़ाए इलाही की है।
مال کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہیں اور اس کا دل یاد الہی سے غافل ہے، اس مال کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا کانیاں دی کلی، اگر کسی کے پاس کانیاں دی کلی بھی نہ ہوئے تے رب دا پیار ہوئے، بولو کی ہوئے؟ رب دا پیار ہوئے، او دے کول سب کچھ ہے، بولو او دے کول۔ تو دنیا سے پیار نہ کریں، دنیا کی زیب و زینت سے پیار نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ۔ اب آگے لفظ سنیں، اللہ پاک اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب اپنے محبوب کو کر رہا ہے اور آنے والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے اللہ پاک، وَلَا تُطِعْ، نہ پیروی کیجئے اس بد نصیب غافل کی، من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے گزر گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ میں بلال کے ایمان سے بے خبر نہیں ہوں، بلال کے ایمان سے، وہ جو امیہ بن خلف تھا وہ بلال کا آقا تھا، آپ جانتے ہوں گے۔ اُیینہ مالدار آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، اور ان کے اسلام لانے کی بدولت اور لوگ اسلام لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، یہ نہیں لاتے ایمان تو نہ لائے۔ اللہ کے ہاں نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے ہاں نیکی کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیک ہو، اگر کوئی رب کو یاد کرے، یہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ میں رب کو یاد کروں گا تو اللہ مجھے کوئی عزت نہیں دے گا، اللہ مجھے کوئی اجر نہیں دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرے اور پھر محروم ہو جائے، پھر اسے کوئی اللہ سے اجر نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔